Hello friends, welcome to Online GS, and we are going to start Indian river systems presented to you by Abhinav Raj. Then we start with our Himalayan river system. Himalayan river system means those rivers which originate and which flow with their source of water from Himalayan mountain ranges, and they comprise mainly of the Indus River, Ganga River and Brahmaputra River along with their tributaries. Then these rivers are also known as antecedent rivers. Antecedent rivers are those rivers which exist before the formation of Himalaya mountain. Then we have to go something in plate tectonic theory, where we know that India, that was a part of Indo-Australian mountain tectonic plate. When it collided with Eurasian plate, then Himalaya mountain formed. But before the formation of Himalaya mountain, there was a Tethys Sea at that place, and these rivers used to flow their water in Tethys Sea. And after the formation of Himalaya, they changed somehow their track, and this can be proved from the deep gorges of the Indus River, Satluj River and Brahmaputra River, which we can see that these rivers have formed a V-shaped deep gorge valley, and this proves that these rivers have cut the rocks of Himalaya, and after that they have flowed through them. Now, Indus river system comprises mainly of these six main rivers, that is Indus River, Jhelum River, Chenab River, Ravi River, Byas River and Satluj River. Then Indus River, which originates from its source from Sikhamam, that is Sinkamukh, the lion's mouth. Where it is a glacier of Kailash mountain range in Tibet, close to Lake Mansarovar, and its total length is 2880 km, but it is only 710 km in India, and the rest part, that is approximately 2200 km, that is in Pakistan. Then it's come to Jhelum. Jhelum originates from Beri Nag spring in Anantnag district of Jammu and Kashmir, J&K, and it is in the foothills of Pir Panjal, and its total length is 720 km. After that there is river Chenab. Chenab is not from a single source. इसके दो मतलब अलग अलग सोर्स हैं, एक को कहते हैं चंद्रा रिवर और एक को बागा रिवर, and when they both these rivers merge at Tandi, and then it's named as Chenab. Then Chandra river जो है Chandra, it originates from Chandratal, and the Bhaga river from the Surajtal, and then in Tandi they meet, and further it's known as Chenab river. There's Ravi near Rohtang Pass, and its total length is 725 km. Byas river originates from Byas Kund near Rohtang Pass, and here we can see that Ravi and Byas river have nearly the same place of their origin. Byas is 460 km long, and here comes the Satluj. Satluj originates from Mansarovar lake. The Mansarovar is same as where it is from Indus lake, and its total length is 1450 km, and in India it is 1050 km. Here what we see that of these the six rivers, Byas is the smallest one. Okay, let's proceed. Now let's start on Indus River. Indus River in Hindi it is known as Sindhu River, and this is the river from which India got its name. इंडिया जो अपना नाम है ना, सिंधु से बना हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान, तो इंडिया गॉट इट्स नेम फ्रॉम द इंडस रिवर. एंड द ग्रेट वैली civilization, that is Indus Valley civilization, was born around this river, and whole of Indus river system से related है Indus Valley civilization. जो भी इसमें आता है ना, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो भी रिवर्स हैं और जो भी civilizations, they developed on the banks of Indus river and its tributaries, and hence known as Indus Valley civilization. हमने तो वी हैव ऑलरेडी मेंशन ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, और दिस फ्लो थ्रू ITSZ. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ITSZ होता क्या है? इंडस सांपो सुतुर जोन. ये एक स्ट्रेट लाइन है विच वी कैन कनेक्ट फ्रॉम Indus river in the west to Sapo in the east.
something like that. And Indus river forms a V-shaped valley. अब ये बात जानना चाहिए कि कोई भी जो माउंटेन से रिवर निकल रही है वो V शेप वैली बनाती है कुछ इस तरह से, और यही जो है एक ग्लेशियर ऑलवेज फॉर्म्स ए U शेप वैली. ओके, ये हमेशा लागू होता है. रिवर विल फॉर्म, फ्लोइंग वाटर विल फॉर्म अ V शेप वैली एंड फ्लोइंग आइस और मेल्टिंग आइस विल फॉर्म अ U शेप वैली. ओके, एंड Indus river forms one of the steepest gorge, that is 5,181 meter above sea level near Attock. Attock is the place which lies in the north of Nanga Parbat. It is in J&K, literally we can say in POK. Okay, and Indus river flows in Ladakh district of Jammu and Kashmir. It passes through and here what we see that ये जो इंडस रिवर है कि ये हिमालयन माउंटेन टेरेन से भी पास कर रही है, यानी माउंटेन टेरेन से, प्लेन से भी पास होती है, डेजर्ट में भी जाती है और फाइनली जाके अरबियन सी में मर्ज हो जाती है. तो इसमें माउंटेन टेरेन इट विल कवर हिमालय, इन द प्लेन्स इट विल कवर काराकोरम प्लेन्स, डेजर्ट्स ऑफ सिंध एंड फाइनली अरबियन सी. इन अरबियन सी इट फॉर्म्स अ डेल्टा. ओके, एंड नॉट अ एस्चुरी. ऑलवेज you should remember this. Now next, here comes in after entering Jammu and Kashmir and the two main ranges जिसके बीच से ये गुजरती है. ऐसा यूपीएससी वालों ने पूछा भी है कि Indus river in entering in India passes through which of the two mountain ranges, in between which of the two mountain ranges. तो first one is Ladakh and then Jaskar. Okay, and this is in the Ladakh region. After that ये गिलगित एंड बाल्टिस्तान, these regions lie in POK, that is Pakistan occupied Kashmir. Okay, तो Indus river system has, any river has two banks, एक लेफ्ट बैंक होता है, एक राइट बैंक होता है. तो कैसे हम जानेंगे कि ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती क्या है, किसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे और किसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट you suppose that you are flowing in that river in the headway stream. तो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में बहें, उसमें तैरें. तो जिधर हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो हमारा लेफ्ट बैंक कहलाएगा, जिधर राइट हैंड होगा वो राइट बैंक कहलाएगा. तो दोज रिवर्स विच विल मीट द रिवर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इट इज नोन एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड दोज फ्रॉम राइट हैंड साइड आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस आर जास्कर रिवर, सुरू रिवर, सोन रिवर. डोंट कंफ्यूज विथ सोन. वो एक सोन है ना जो मध्य प्रदेश और बिहार में है, लेकिन ये वो सोन नहीं, ये दूसरी सोन है. उसके बाद आता है झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, सतलज रिवर एंड पंचनद रिवर. पंचनद इज अमलगमेशन ऑफ ऑल दीज 5 रिवर्स. मतलब सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इन 5 रिवर्स को एक साथ हम पंचनद बोलते हैं. पंचनद यानी कि पंच संस्कृत वर्ड है ना, पंच मीन्स 5 एंड नद मीन्स रिवर. तो अमलगमेशन ऑफ 5 रिवर्स, इसको ये पंचनद हो गया. तो ये क्या देखें कि ये जो इंडस की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ये पांचों उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हो सकती हैं. ऑल द 5 रिवर्स, ऑल द मेन 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस दैट आर सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, तो ये पंचनद कहलाती हैं. और ये 5 नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती हैं उस क्षेत्र को पंजाब बोलते हैं. पंजाब मतलब हुआ कि ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स. ओके, एंड इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, कुन्नार, काबुल, खुर्रम, गोमल एंड जोब रिवर. ओके, सॉरी फॉर दिस राइटिंग मिस्टेक, इट्स मस्ट बी रिवर. ओके, and some of the important cities located on Indus river are Leh, Askardu, Dashu, Besham, Thakot, Dera, Ismail Khan, Sukur and Hyderabad. This Hyderabad is in Pakistan and not in India. Okay, वो जो इंडिया वाली हैदराबाद है वो किस रिवर पर लोकेटेड है आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, हियर द मैप ऑफ इंडस रिवर सिस्टम. ये जो 1 नंबर से रिप्रेजेंट किए हैं, ये देखिए ये इंडस है, ऐसे तिब्बत से होते हुए इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर और फिर
पाकिस्तान में है से, और ये पांचों अलग अलग रिवर हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। दिस इज 5 नंबर इज ब्यास। और ये जहाँ यहाँ मिल जा रही है ना, ये पांचों को एक साथ ये क्या कहेंगे, इसी को एक साथ पंजनद बोल देते हैं। ओके, एंड दिस सिंध इज द डेजर्ट एरिया, उसी का कोरस्पॉन्डिंग इधर इंडिया में थर्ड डेजर्ट पड़ता है। और फिर ये रिवर आके अरेबियन सी में गिर जाती है। ओके, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू ईस्ट ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले जो इंडस रिवर में जो रिवर मिलती है उसको धार रिवर बोलते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल मैप पर दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये मुझे इंसाइक्लोपीडिया या इनकार्टा कहीं पर नहीं मिला। ओके, तो दिस इज इंडस, दिस इज अ मैप ड्रॉन बाय मी। ओके, एंड हियर इट इज कैलाश माउंटेन, बुखारशु, सीखमम, लाइन्स माउथ फ्रॉम हियर। तो ये इंडो चाइना बॉर्डर हुआ। तो इंडिया में घुसते समय जो सबसे पहले से रिवर मिलती है उस रिवर को हम करें धार रिवर। उसके बाद द नेक्स्ट रिवर इज जास्कर रिवर एट ले, और उसको ये जो जगह पर मिल रही है दिस इज जास्कर रिवर। जास्कर रिवर मिड्स इन इंडस रिवर एंड दैट प्लेस इट इज नोन एज चादर वाक। ऐसे भी याद कर सकते हैं निमोनिक की चादर ठंड का जगह है और फिर चादर ओढ़कर कोई वॉक कर रहा है तो चादर वॉक हो गया। ओके, सॉरी। एंड उस सियोक रिवर, सियोक इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर एंड फ्रॉम नॉर्थवर्ड साइड इट मीट्स इंडस एंड इज दैट प्लेस एट नोन एज अस्करदू। ओके, एंड देन इट्स टर्न, ये ऐसे ही नदी ये गिलगित तक जाती है। गिलगित इज अ रिवर एंड गिलगित इज अ प्लेस। ओके, गिलगित इज अ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। उसके बाद ये जो रिवर है इट टेक्स अ शार्प साउथवर्ड बेंड, एंड इस टाइप के बेंड को क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। ओके, तो ये वाला टर्मिनोलॉजी ना इंपॉर्टेंट हो गया कि व्हाट फ्रॉम विच काइंड ऑफ बेंड या व्हाट टाइप ऑफ बेंड इज वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर सिंध रिवर और इंडस रिवर bends southward. Okay, then it's come Kabul river. Kabul is a river from Afghanistan. अफगानिस्तान का कैपिटल भी है काबुल। तो काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान नाउ came and meets Indus river. After that this Kabul river and there it after Kabul river ये जो रीजन हुआ ना पाकिस्तान में, तो इसको पोटवार प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये पोटवार प्लेट्यू को क्रॉस कर रही है। उसके बाद इसी तरह से ना ये और ये जो पांचों नदियां आ रही हैं इधर से, ये पंचनद हो गया। तो पंचनद ये जहां मिल रहा है ना उसको मैथानकोट जगह हुआ। तो जस्ट एबव मैथानकोट, ये मैथानकोट के पास ये पंचनद जो आके इंडस में मिल जाती है। एंड देन फाइनली दिस रिवर मीट्स अरेबियन सी। तो ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ऑन ऑनलाइन जीएस। थैंक यू।